physical parameter that is found in all electrical devices. Virtually everything in electrical engineering has a resistance. So if you look at a winding of a transformer, there is a resistance. If you look at the correction leads, they have a resistance. You look at a coil, it has a resistance. You look at condensers, they have resistances. Resistances are always present whenever there is a dissipation of energy. ठीक है, dissipation of energy in the form of heat or light, mostly dissipation. ठीक है, so you are passing current and through some device, I don't know what is the device, but heat energy is lost to the surroundings. This denotes the presence or absence, or rather the presence of a resistance. ठीक है, so unfortunately or fortunately, the variation in the resistances that is seen is quite phenomenal. So broadly speaking, you can classify your resistances into three categories. You have low, you have medium, and you have high. Low resistances are resistances whose uh, physical value is somewhat less than 1 ohm. Then we have high resistances whose value is at least 1 lakh ohms. ठीक है, anything intermediate is medium resistance. Where do we find low resistances? Low resistances are typically found in windings of large machines. ठीक है, windings of large transformers, cables, etc., etc. So these resistances are very small. Resistance कब small होती है? When you have a conductor, if you look at the, remember the formula, resistance is equal to rho L by A. If you have any device which has a small length, it is thick, in other words, has a large cross-sectional area, and its resistivity is small, which another way of saying that is conductivity is large, the resistance value is very small. So typically, if you look at, say, windings of a transformer, of a large transformer, नहीं वो आपका छोटा मोटा ट्रांसफार्मर नहीं जो घर में होता है. Look at a large power transformer, you should probably have studied in electrical machines course. The conductors are pretty thick because they have to carry a substantial amount of current. They are made up of copper. Copper is an excellent conductor of electricity, and therefore resistivity is small. Compared to the current that they have to carry, the length is quite small. You can compare the current carried by a transformer to the current carried by a transmission line. The length of a transmission line can be tens or hundreds of kilometers. Compared to that, the length of a winding of a transformer is negligible. It's very small. So resistances of these large conductors, sorry, large windings of large transformers, machines, etc., typically throw up resistance values which are pretty small. Then you have high resistances of the order of 10 raised to power 5, 10 raised to power 6. These are typically found in the insulations of cables, conductors, transformers, जो भी आप देखना चाहते हो, as well as in the porcelain insulators which are very commonly used. अगर आपने घर के बाहर आप कभी देखोगे जो तार होती है ना, जो आपको सप्लाई आती है घर पे, दैट इज अ कंडक्टर, बट वो आसमान में लटका मत होता है, वो किसी पर्टिकुलर टावर के ऊपर लटका होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है. इलेक्ट्रिसिटी पोल इटसेल्फ इज टिपिकली मेड अप ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल. तो आपको कंडक्टर एंड कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए हमने पोर्सलेन, जो बोन चैन है, जिसको हम आमतौर पे कश्मीरी में कहते हैं, या मतलब यहाँ कश्मीर में कहते हैं, उसके इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट. दूसरे हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, ये भी सॉलिड होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आपने केबल या ट्रांसफार्मर वगैरह में इंसुलेशन देखा होगा, इट इज टिपिकली मेड अप ऑफ पेपर, या ये बना होता है ऑफ पीवीसी या बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्लास्टिक का. The resistance value of these resistance values are very large, 10 is per 5, 10 is per 6, यानी कि 1 mega ohm and thereabouts. Then you have ये जो intermediate variety होती है, ये कौन सी resistances है आपके पास? These are मतलब resistances which you typically see small to medium जो आपकी machines होती हैं, उनकी winding resistances. मोस्टली जो आपके लैब में इक्विपमेंट होते हैं, जो आपके रियोस्टैट्स हैं फॉर एग्जांपल, या जो आपके लैब के अंदर हीटिंग अप्लायंसेस हैं, घर के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं,
या घर के अंदर जो छोटे मोटे हमारे मोटर्स होते हैं वगैरह, उनकी रेजिस्टेंसेस लगभग मीडियम रेंज में होती है. सो एनीथिंग बिटवीन 1 ओम एंड 10⁵ लुक एट द अमाउंट ऑफ वेरिएशन. ये जो हमारी लार्ज रेजिस्टेंस है, रिमेंबर दिस इज नॉट 10⁵, इट इज ग्रेटर देन 10⁵. इट कैन गो अप टू 10⁻10 even. We have some insulators which are such excellent insulators that their resistance is phenomenally large. In practice they are therefore known as insulators. Insulator का मतलब है current flow ideally speaking zero है, practically speaking very small है. These correspond to excellent conductors जिनकी आपकी resistance values बहुत कम होंगी. And then ये बीच में आपकी ये medium range है. So because of the phenomenal variation of resistances seen, the same methods typically cannot be used for all resistances. हालांकि physically they denote dissipation of heat, but variation level इतनी ज्यादा है कि same method हर जगह apply नहीं होते हैं. So let us start with low resistance. लो रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने में बहुत लोचे होते हैं. मेन इशू क्या है? मेन इशू इसके अंदर ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम इसमें होती है कि आप करोगे कोई रेजिस्टेंस मेजर, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर दिस रेजिस्टेंस, दिस इज वेरी स्मॉल, मतलब दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 ओम फॉर एग्जांपल, या देयर अबाउट्स, इट्स अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. क्या गारंटी है कि जो ये कनेक्टिंग आप इसको लीड्स कर लगा रहे हो उसकी रेजिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी? ठीक है, आपको समझ आया? जो आपकी कनेक्टिंग लीड्स होती है नॉर्मली इसकी रेजिस्टेंस आप इग्नोर करते हैं. रीजन इज जो अभी आप ये बीच में लगाते हो, that has a very large resistance value. But if the resistance to be measured is comparable to the resistance of the leads, how do we ensure that these leads do not affect the measurement? Another thing is, आपने देखा होगा हमारे पास मुझे नाम भूल गया उसको क्या कहते हैं, जंक्शन इफेक्ट्स होता है उसका नाम, बट आई हैव फॉरगॉटन द नेम. पेल्टियर ईएमएफ किन कुछ उसका नाम था. कोई मुझे कह सकता है वो क्या नाम था उसका, जब आपके पास दो डिसिमिलर मेटल्स को कांटेक्ट में रखते हैं कि ईएमएफ जनरेट होता है, तो क्या था वो नाम? कोई मुझे बोल सकता है? हेलो? अगर हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम को हमने कहीं कांटेक्ट में लाया, वहां एक ईएमएफ जनरेट होता था, उसको कुछ कहते थे पेल्टियर या कुछ, मुझे नाम भूल गया है. तंजीब आपको याद है? हेलो? No, अरे प्लीज ये प्लीज फाइंड आउट, आई हैव फॉरगॉटन द नेम, कुछ ईएमएफ इसका नाम था, बट जनरली इसको हम कहते हैं जंक्शन इफेक्ट. फॉर एग्जांपल आपने घर में देखा होगा यूनिफॉर्मली हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर वायरिंग. हम कभी ऐसा नहीं आप देखोगे कि कॉपर को हम डेलिबरेटली, मतलब जहां तक मुमकिन होगा अवॉइड करेंगे एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट करना, फॉर एग्जांपल, बिकॉज वेन एवर यू हैव टू डिसिमिलर मेटल्स इन कांटेक्ट, लोकल ईएमएफ इज जनरेटेड. बिकॉज ऑफ दैट लोकल ईएमएफ, जब भी उस वोल्टेज वगैरह आप मेजर करोगे, जिससे हम इन्फर करते हैं एक्चुअली रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसकी आपकी रीडिंग्स हो जाती है मतलब इधर उधर. सो यू हैव टू बेसिकली वरी अबाउट टू थिंग्स. एक तो आपको जंक्शन इफेक्ट्स को के असर को मिनिमाइज करना है, दूसरा आपको इंश्योर करना होता है कि हम ये जो ये कनेक्टिंग लीड्स होती है ना, उनका असर मिनिमाइज हो जाए. आंसर वेरी सिंपल है. हम इसमें जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ करेंगे, खत्म कहाँ से करेंगे, जो आपकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है. फॉर एग्जाम्पल हम डेडिकेटेड क्या नाम है कनेक्शन पॉइंट्स बनाते हैं, उसके बीच में अपनी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली कनेक्ट करते हैं. हम बोलेंगे वट एवर रेजिस्टेंस दैट वी आर मेजरिंग, इट इज प्रिसाइसली द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. इट इज नॉट से रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डैश. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द सेम एज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. बट बिकॉज दिस रेजिस्टेंस, ये जो आपने मे बी कॉपर या वट एवर जो भी आपने इस्तेमाल किया है, क्या कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस दैट इज कंपेरेबल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस दैट यू आर मेजरिंग. सो यू हैव टू एंश्योर कि आपको फिजिकली लोकेट करना होता है कि कहाँ से कहाँ मुझे रेजिस्टेंस मेजर करनी है. उसके लिए नॉर्मली हम ये डेडिकेटेड टर्मिनल्स यूज करते हैं. टर्मिनल्स की ये खुसूसियत होती है कि इसकी कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करते हैं कि ये जंक्शन इफेक्ट उसमें यूजुअली, मतलब अगेन द वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज यूजुअली, नॉट ऑलवेज, दोज आर मिनिमाइज्ड. ये कोई नॉर्मल कॉपर वगैरह नहीं होता है, हम इसमें अलॉय वगैरह वो इधर उधर करते हैं, वो मेटलर्जिस्ट वगैरह, तो वो इंश्योर करते हैं कि आपकी जंक्शन ईएमएफ जनरेट ना हो. ठीक है, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड मटेरियल था कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है. लेट अस नाउ लुक एट द मेथड्स. दो तीन मेथड्स है आपके पास, क्या नाम है इसका, measurement of flow resistance में. let us look at the first method. The first method is it is actually very simple. इसको हम कहते हैं ammeter voltmeter method.
ये जाहिर सी बात है सबसे सिंपल मेथड भी है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं इट इज अ जुगाड़ मेथड। देखो क्या होता है इसके अंदर, हमारे को कोई रेजिस्टेंस मेजर करनी है, हम उसको पहले अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको बोला, कनेक्ट करते हैं। ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई अननोन, लेट अस कॉल दिस आर, ठीक है। एंड ये है आपकी रेजिस्टेंस, इसको मैंने कनेक्ट किया थ्रू अ रियोस्टेट टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, और उसको मैंने कनेक्ट किया टू अ हाई कैपेसिटी बैटरी। दिस इज अ रियोस्टेट, this is a battery. Why am I using a rheostat? Number one, it regulates the current अगर मुझे current vary करनी होती है। More importantly, you look at what would happen in the absence of this rheostat. अगर ये rheostat मैं हटाऊंगा, बैटरी को खाली small resistance नजर आ रही है, small r, and correspondingly the current can be large. The current can be so large that the battery is effectively short circuited. बैटरी को आप short circuit करोगे वो जल जाएगी, ठीक है। तो ये रियोस्टेट टिपिकली हम बहुत यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, क्योंकि अदरवाइज करंट लेवल बहुत हाई होती है, ठीक है। ये आपके पास कुछ बैटरी है, वट एवर नॉन बैटरी है आपके पास ई, एंड आप क्या करते हो, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हो। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन का मतलब ये है कि ये एमीटर शॉर्ट सर्किट है, वोल्ट मीटर ओपन सर्किट है। हम क्या करते हैं, हम करंट यहाँ फ्लो करवाते हैं, एमीटर की रीडिंग यहाँ पर करंट आई है, ठीक है। दिस इज अ डीसी, सो कैपिटल आई मैं यूज करूंगा, एंड इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ऑफ वी, ठीक है। दिस वोल्टेज इज मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर। आई एम अज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल वोल्ट मीटर। इसका मतलब है दिस इज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है देयर इज नो करंट फ्लो हियर, ठीक है। सो वी कैन गो फॉर V by I, Ohm's law is equal to R. आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे खाइन 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 हो रहा है आज, ठीक है। सो क्या मैं कह रहा था, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नॉट मेजरिंग रेजिस्टेंस डायरेक्टली इन दिस मेथड। इंस्टेड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेजरिंग, एमीटर से क्या मेजर होता है, करंट। वोल्ट मीटर से मेजर होता है वोल्टेज। हम वोल्टेज एंड करंट करते हैं मेजर, शिवानंद V by I is equal to R. Is it any questions on this? कोई क्वेश्चन? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सो होपफुली आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेट अस नाउ लुक एट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमको इशू क्या होता है, एमीटर इज नॉट अ शॉर्ट सर्किट एंड वोल्ट मीटर इज नॉट एन ओपन सर्किट। उससे वैसे एमीटर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट लेट अस सी। ये है मेरा एमीटर, ये है मेरा बेचारा, लेट अस नाउ सिंपली ड्रॉ द रेजिस्टेंस, और ये है मेरा वोल्ट मीटर। दिस इज आर, दिस इज आर वी, ठीक है। दिस इज से आर ए वट। देखो अब क्या प्रॉब्लम है, ये आपको करंट दिखाएगा आई, तो इस क्योंकि आर ए सीरीज में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट की एक ही बात है यहाँ पर। द प्रॉब्लम हियर इज, if you look at the voltmeter reading here V, this is not simply the voltage drop across R, but rather this is the voltage drop across the parallel combination of R and RV. You look at R, which is the resistance to be measured, RV is the resistance of the voltmeter. I know that the resistance is typically very large, but because क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं उसको, माय रेजिस्टेंस टू बिगिन विद इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो रेजिस्टेंस है मेरी बहुत ही छोटी है। even a slight error can produce a significant error in the measurement of resistance. Let us look at that by using an example. I have lifted it out of your book. So we have, let us assume a resistance that was to be measured is 1 ohm, जो नोशनल वैल्यू होता है आपकी स्मॉल रेजिस्टेंस का। एंड हमारे पास सो ओके, या ओके, सो हमारे पास ये जो वोल्ट मीटर है जो आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ से 5 ohms, ठीक है। सो
लेट अस सी इसका नतीजा क्या होगा. वी आर पासिंग अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर्स. दिस इज द करंट. ठीक है. आई नो दैट ये रेजिस्टेंस मेरी 1 ओम है. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगाया. उसकी जो रेजिस्टेंस है इट इज 5 ओम, विच इज ऑल्सो क्वाइट स्मॉल, बट it is substantially larger compared to R. It is 5 times larger. The current that I am pushing is 100 milliampere. मेरी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग इज वेरी सिंपल. हम रीडिंग कैसे लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस की? हम देखते हैं हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा अक्रॉस दिस टर्मिनल फ्रॉम से पॉइंट P and P to Q. We divide it by the current reading and we get the measured value of resistance. So first of all, if you want to find out the voltage drop between point P and Q, you have to find out the equivalent resistance. Equivalent resistance आपने निकाली, उसको करंट से मल्टीप्लाई करोगे ओम्स लॉ के तहत. voltage drop is equal to equivalent resistance multiplied by current. So what is the equivalent resistance? If you can see here, हमारे पास एक resistance है 1 ohm. उसके पैरेलल में मैंने एक और resistance लगाई 5 ohm. सो शाबाश, कोई मुझे कह सकता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ कितनी है? अरे कोई तो बोलो भाई. 5/6. 5/6. ऑब्वियसली 5 into 1 डिवाइडेड बाय क्या नाम है इसका, 5 + 1. सो वो कितना हो गया? 6 8 = 48. सो दिस इज 0.8. 2 हो जाएगा 3 3 ऐसा कुछ. ठीक है. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शोन टू व्हाट, जो आपके वोल्ट मीटर को एक्चुअली नजर आ रहा है, जिसके अक्रॉस से वोल्टेज मेजर कर रहा है. सो what will be the voltage drop? The voltage drop is obviously equal to R equivalent into current. वो किसके बराबर होगा? That will be 0.833 ohms into current कितनी है? It is 100 मिली एम्पियर. तो मिली कितना हो गया? 10⁻³ into 100 हो गया 0.1. So this is 0.0833. ठीक है, वोल्ट. इज इज क्लियर? एक्सट्रीमली स्मॉल वोल्टेज. अब देखो, लुक एट द लेवल ऑफ वोल्टेज. यहाँ पर 0.083 का मतलब है इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 वोल्ट. एन एक्सट्रीमली स्मॉल वोल्टेज. दैट इज द रीजन वाई जो आपने वोल्ट मीटर यहाँ यूज किया ना, उसकी रेजिस्टेंस आपने उतनी कम नहीं रखी है, मतलब उतनी ज्यादा नहीं रखी है. टिपिकली जो अभी तक हम एग्जाम्पल देख रहे थे, जो अगर आपको याद होगा, व्हेन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्ट मीटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वहां पर हम जो रेजिस्टेंस के वैल्यूज ले रहे थे दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ ओम्स. द प्रॉब्लम इज बिकॉज द जनरेटेड वोल्टेज फॉर टिपिकल वैल्यूज ऑफ these small resistances, it is of the order of 1 ohm. These voltages are so small. ये कितना है? 1 वोल्ट का 10 हिस्सा है ये. अगर आपने इतनी बड़ी रेजिस्टेंस रखी ना वोल्ट मीटर में, मान लो 1000 ओम, वहां पर करंट कितनी फ्लो होगी? बहुत ही स्मॉल. इट विल नॉट बी एन माइक्रो एम्पियर. माइक्रो एम्पियर वाली करंट से कोई डिफ्लेक्शन ही आपको नजर नहीं आएगी वोल्ट मीटर में. वी आर नॉट वर्किंग इन द रेलम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हियर, जहां माइक्रो मीटर एम्पियर करंट वहां भी वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है माइक्रो एम्पियर करंट. यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पर अगर आपके पास मान लो 1/10 ऑफ एन एम्पियर के नीचे आपकी करंट चली गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज एज गुड एज जीरो. उसको हम कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. So anyway, the last step is what will be the reading. You can in fact infer it from this equation as well. The reading will be, this is R measured, this will be V by I, which obviously equal to R equivalent. वो कितना है? 0.833. 0.833 आपकी रीडिंग दिखाएगा. ये एक्चुअल रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम. तो 1 ओम में से अगर आप निकालोगे, एरर की डेफिनेशन क्या होती है? मेजर्ड माइनस एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल. सो मेजर्ड इज, आई विल राइट परसेंटेज एरर is equal to measured is 0.833. एक्चुअल 1 है डिवाइडेड बाय 1 into 100. ये कितना है? जल्दी बोलो. 16.7 minus 16.67%. ठीक है, विच इज क्वाइट लार्ज.
मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि ये जो आपके पास आर वी होता है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो आपके पास वोल्ट मीटर की रीड रेजिस्टेंस होती है, तो बहुत ही सिंपल इसमें है, थोड़ी बहुत इसमें डेरिवेशन में चेंज आपको करना होता है। सो लेट अस सी, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। एमीटर है यहाँ पे, it is carrying a current of I. Then you have a parallel combination now. This is R, this is RV. RV is the resistance of the voltmeter that you are using. ठीक है? So अगर आप इसका equivalent resistance निकालोगे, किसके बराबर होगा? What is this equivalent resistance of this parallel combination? शाबाश, अरे जल्दी बोलो ना। R and RV are in parallel. तंजीब, hello? R into RV divided by R plus R. है ना, obviously. So this will be R into RV. तो फिर किसका वेट कर रहे थे आप? मैं जो कह रहा था बोलो जल्दी। R plus RV। ठीक है, वेल नोन फॉर्मूला आपके पास है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहां से यहां तक आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो, दिस इज वोल्ट मेजर्ड वट एवर। ठीक है। सो अगर आपको दिस विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग, are measured. This will be voltmeter reading divided by current reading. That obviously is equal to the equivalent resistance. ठीक है, ohms law मैं यूज कर रहा हूँ। So this is equal to R into RV divided by R plus RV. So as you can see for yourself, इसमें हमारे पास RM is not the same as R, measured resistance is not the same as R, लेकिन measured resistance से आप infer कर सकते हो value of R. So let us see, R measured is equal to R into RV divided by R plus RV. ये है। ओके, क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है एनीवन? अगर मैं इसको यहां से यहां शिफ्ट करता हूं, डिनोमिनेटर को यहां लूंगा, सो दिस विल बिकम आर एम इंटू आर प्लस आर एम इंटू आर वी इज इक्वल टू आर इंटू आर वी। ठीक है। सो उसके बाद क्या मैं करूंगा, आर आर यहाँ कॉमन है, सो आई विल टेक दिस टर्म ऑन द आर एच एस। ये बनेगा आर एम इंटू आर वी इज इक्वल टू आर कॉमन अगर मैं लूंगा, दिस विल बी आर वी माइनस आर एम। ठीक है। और फ्रॉम दिस वी कैन राइट इमीडिएटली दैट आर, which is the actual value of resistance, it is equal to measured value of resistance into voltmeter resistance divided by difference of voltmeter resistance and measured resistance. ठीक है, this is the formula जो typically हम use करते हैं। So in order to find out the value of the resistance, it is not sufficient to just look at Rm. We also need information about Rv, which is typically known. So by using this formula, which is pretty similar to the formula of a parallel combination of Rm and Rv, खाली ये है कि प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है, इसे याद याद भी रहता है आसानी से। We can find out the value of resistance. Any questions? ओके, सो द लो रेजिस्टेंस में दूसरा मेथड जो आपकी थोड़ा, अगर आपने लास्ट क्लास में ध्यान दिया होगा, वो जाहिर सी बात है लॉजिकली पोटेंशियोमीटर मेथड होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर में क्या फायदा था? व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ पोटेंशियोमीटर? मैंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है पोटेंशियोमीटर की कंपेयर टू एनी अदर डिवाइस। तंजीब, तंजीब, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. तंजीब, Yes, sir. ए Yeah, वन I'm से जल्दी,
क्या एडवांटेज था पोटेंशियोमीटर का, मेन एडवांटेज ओवर अ वोल्ट मीटर? इतनी जल्दी कैसे भूल गए आपको शाइक? ये सर मेन एडवांटेज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर, मेन एडवांटेज। सही, उसमें लेंथ चेंज करके उसमें वोल्टेज भी चेंज होती है ना। हाँ तो एडवांटेज। एडवांटेज मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, यू मतलब इस्तेमाल कैसे होता है, सबसे पहले मैंने वहां बोला था, अगर आपको लास्ट क्लास याद है। कोई गर्ल बोल सकती है अदीबा आर यू है? अदीबा आप यहाँ हो? मुझे बेटा, मुझे आपका एक्चुअली यहाँ 5 6 नाम ही चढ़ रहे हैं और आई विल हैव टू फाइंड आउट। अदीबा आर यू है कि नहीं है वो? वारिसा, डू यू वांट टू आंसर दैट? Yes, sir. मेन एडवांटेज ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर और व्हाटएवर, क्या उसमें एक खुसूसियत है जो मतलब जिसकी वजह से हम उसको यूज करना पसंद करेंगे? अरे लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, आपको क्या हो गया? वेंसडे की तो बात है। मतलब उसमें फेज मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। नहीं वो तो एसी पोटेंशियोमीटर की, मैं तो अभी तो डीसी की बात कर रहा हूँ। सर सर null उसमें point आता है ना वहां पे। हाँ क्या बोल रहे थे बिस्मा, आप बोल रहे थे कुछ? जी सर। क्या बोल रही थी आप, बोलो। सर वहां पे वो बैलेंस पॉइंट आता है ना, ड्यू टू विच करंट फ्लो जीरो हो जाती है, तो ड्रॉप भी आता है जीरो। हाँ अगर करंट फ्लो जीरो होगी तो बैलेंस्ड होता है। हाँ बैलेंस्ड होता है, लेकिन वो एडवांटेज क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्यूरेसी फ्लो ज्यादा नहीं होती है। होता है। फिर पावर कंज्यूम अरे नहीं होता एक 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 बोलेगा। फिजा, डू यू वांट टू आंसर दैट? क्या बोल रही थी आप, प्लीज कंटिन्यू। सर्किट को। हाँ वही तो है, यहाँ देखो ना हमको यहाँ एरर क्यों आ रहा था, why were we getting an error for example here? The reason was, let us go back to the original diagram. ये जो आपका वोल्ट मीटर है ना, it is drawing some current from the circuit, है ना? This RV is not infinity. If this is not an open circuit in practice, ये कोई करंट ड्रॉ करता है, आपके सर्किट को लोड करता है, उससे सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है दिस वोल्टेज इज गेटिंग चेंज्ड। ये जो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है ना, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर द वोल्टेज ड्रॉप बिकॉज ऑफ अ करंट आई फ्लोइंग इन आर, इट इज बिकॉज ऑफ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ करंट आई फ्लोइंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड आर वी। पोटेंशियोमीटर में क्या खुसूसियत है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेजर अ करंट इन द स्टेडी स्टेट, जब आपके पास वो जॉकी दिखाता है नो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन पॉइंट जिसको हम कहते हैं, नो डिफ्लेक्शन पॉइंट सॉरी, नल पॉइंट भी जिसको कहा जाता है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, तो ये प्रॉब्लम वहां अराइज ही मत होगी। दैट इज द रीजन व्हाई दिस पोटेंशियोमीटर, ये जो ये एमीटर वोल्टमीटर मेथड है ना, ये बहुत ही क्रूड मेथड है। बेटर टू यूज अ पोटेंशियोमीटर मेथड, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट वी डू इज, हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाते हैं। why are we using two resistances? The reason is we don't want to use even an ammeter here, even though अगर आपने यहाँ पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस वोल्ट मीटर, कहाँ गया एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, अगर आपने एमीटर को एमीटर रखा होता, खाली वोल्ट मीटर के बजाय आपने यहाँ पर वोल्टेज मेजर नहीं की होती यूजिंग अ वोल्ट मीटर, बट रादर यू वुड हैव यूज्ड ए पोटेंशियोमीटर, ये प्रॉब्लम अराइज मत होगी, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेजर अ वोल्टेज, current is zero, so you will get an accurate measurement. A more refined way of modifying this ammeter voltmeter method would be to somehow use a potentiometer and not use even an ammeter. यहाँ तो मैंने voltmeter को हटाया, so उसका modification आप देखो। What we do is we use a कुछ सगो, ओके ये हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस R, ठीक है, और ये हमारे पास है कोई नोन रेजिस्टेंस X, ठीक है, दिस इज नोन। ठीक है, oh sorry, this is not unknown, this is known and this is unknown, they are in series, उसका मतलब है same current is flowing. So this current I, this voltage is say V and this voltage is say Vx, so this is VR and this is Vx. So if I look at this ratio, कहाँ गया मैं, VR divided by Vx किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो ना।
फिल्जा, वी आर बाई वी एक्स किसके बराबर होगा? R by X. आप फिल्जा हो? Sorry, ओके, कोई बात नहीं। अब आपने बोला, देखो क्या है इसके अंदर, सिंपली वी फिल्जा, आप मुझे कह सकते हो आर बाई एक्स के बराबर क्यों होगा? सर क्योंकि दोनों की साइड मतलब दोनों से सेम करंट फ्लो हो रही है ना, वो कैंसिल हो जाएगी फिर। आई हाँ आर देखो, एग्जैक्टली, वी आर इज इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता है फिजा? V इक्वल्स टू आई आर। हाँ, सो अगर आप यहाँ देखोगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट करंट इज आई, रेजिस्टेंस कितनी है? हेलो? आर। हाँ, सो दिस विल बी आई टाइम्स आर। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में होगा आई टाइम्स एक्स, सो दिस विल कैंसल आउट, वहां क्या बच गया? आर बाय एक्स। ठीक है, सो इफ आई नो दिस रेशियो, कहाँ गया ये रेशियो ऑफ दीज टू वोल्टेजेस, और मुझे ये तो वैसे भी नोन रेजिस्टेंस है एक्स, ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। आर किसके बराबर होगा? आर विल बी रेशियो ऑफ वोल्टेजेस इनटू नोन रेजिस्टेंस। हाउ डू वी फाइंड रेशियो ऑफ वोल्टेजेस? हम क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करेंगे यूजिंग द सेम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो कहाँ गया ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रिमेंबर दे आर कैरिंग द सेम करंट, सीरीज में है ना। सो दिस इज एक्स और ये आपके पास है आर। सो हमारे पास एक, अब मैं यहाँ पूरा पोटेंशियोमीटर नहीं दिखा रहा हूँ, मैं खाली पोटेंशियोमीटर की लेंथ दिखा रहा हूँ। रिमेंबर पोटेंशियोमीटर को एक बैटरी भी होती है साथ। मैंने पहले इसको बैलेंस किया, एक्स को मैं क्या कैसे बैलेंस करता हूँ, इसको एक पॉइंट कनेक्ट करता हूँ ऐसे, और जॉकी को यहाँ इधर उधर करता हूँ। मान लो इसका बैलेंस पॉइंट है से L2। इन द सेम वे आर को कैसे बैलेंस करूंगा, ये ऐसे लगाऊंगा, उसके बाद ये इधर उधर कहीं करूंगा। मान लो इसका बैलेंस पॉइंट है L1। हमको पता है वोल्टेज, पोटेंशियोमीटर क्या देता है, बेसिकली वो कन्वर्ट करता है वोल्टेज इंफॉर्मेशन को लेंथ इंफॉर्मेशन के अंदर। सो वी नो दैट दिस वी आर वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो भी है, वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस लेंथ पे बैलेंस हुआ, L1। सिमिलरली वी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस लेंथ पे बैलेंस हुआ, L2। सो वी आर बाई वी एक्स किसके बराबर होगा? एनीवन? अरे बोलो ना यार, सिंपल है। L1 by L2. इट विल बी L1 बाई L2। सो अगर आप देखोगे, इनफैक्ट हमको यहाँ पर पोटेंशियोमीटर की ये भी पता नहीं होनी चाहिए कि लेंथ पर क्या नाम है इसका, बैटरी की वोल्टेज क्या है फॉर एग्जांपल, वो इन्फॉर्मेशन भी हमें कहीं नहीं चाहिए। रिमेंबर पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस खाली नहीं है, उसमें बैटरी भी लगा के होती है। हमको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट क्या है। पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली लेंथ पर, वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हमको खाली बैलेंस पॉइंट चाहिए इस वोल्टेज का और बैलेंस पॉइंट चाहिए इस वोल्टेज का। विल फाइंड आउट वी आर बाई वी एक्स। इफ आई फाइंड आउट वी आर बाई वी एक्स, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ लेंथ्स। सो दिस विल सिंपली बी आर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? दिस विल बी L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू एक्स। सो ये क्या नाम है, आर का वैल्यू निकालने के लिए, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, आई नीड बैलेंस पॉइंट ऑफ आर, बैलेंस पॉइंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ये एक्स विच इज नोन टू मी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? नो सर। Okay, so very good, shabash. Let us now look at a slightly more complicated method. इसको हम कहते हैं Kelvin's double bridge. आपने एक ब्रिज मेथड तो पढ़ा ही है 11th 12th या शायद उससे पहले भी, उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई मुझे कह सकता है व्हाट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन 4 ब्रिज क्या रेजिस्टर्स होता है? होते हैं उसमें। क्या एक होता है? अननोन होता है। 4 रेजिस्टर्स होते हैं। हाँ, शाबाश। फिर क्या होता है? बैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो। हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, उससे थोड़ा आपको याद रहेगा। ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बट टिपिकली ये यूज होता है फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंसेस। तो एनीवे उसकी एक मॉडिफिकेशन है।
ठीक है। सो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है, ये रखूंगा मैं, ये रखूंगा मैं, ये रखूंगा मैं, ये रखूंगा मैं, ये, और यहाँ बीच में मैं लगाता हूँ अपना गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पर कुछ बैटरी कनेक्टेड है, वट एवर। हाँ, लेट्स अज्यूम Q मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, एंड स्मॉल m कैपिटल M नोन रेजिस्टेंसेस हैं, Q वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस है, स्मॉल q। बैलेंस पॉइंट क्या हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का? बैलेंस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या होती है, एनीवन? 0। जीरो होती है ना, तब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होती। एट बैलेंस पॉइंट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल Q, स्मॉल m, कैपिटल M? Filza, do you want to answer that? Capital Q by small q equals to capital M by small m. In other words, capital Q is equal to small q, कैपिटल M, स्मॉल m। ये हो गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी बहुत सारी मतलब फॉर्मुलेशंस होती है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं उसको, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज केल्विन, सॉरी, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। सो बेसिक आइडिया इज यू ट्राई टू गेट 4 रेजिस्टेंसेस इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर आप फिट करो, एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाओ जब तक आपको गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। 4 में से अगर आप 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू बोल सकते हो, चौथे का वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको पता है। सो बेसिकली दिस इज अ वे ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट हाउ। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिकली ये इशू नहीं है मेन, इसमें इशू में हमको प्रॉब्लम क्या है, ये देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। बैलेंस पॉइंट करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल Q को वैरी करना है। Q को आप कैसे वैरी करते हो? इट इज अ रियोस्टैट। ठीक है, रियोस्टैट जो आपका टिपिकल रियोस्टैट होता है ना, उसकी रेजिस्टेंस अपनी होती है टेंस ऑफ ओम्स में। अगर आप उसको रियोस्टैट कभी आपने लैब में तो देखा होगा, रियोस्टैट क्या होता है, बहुत सारी तारें होती हैं ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट फिक्स रखते हो और दूसरी तार के ऊपर वो स्लाइडर होता है जो आप लेफ्ट राइट घुमाते हो, आप एक टर्न से दूसरे टर्न पे जाते हो। व्हेन आई मूव फ्रॉम वन टू टर्न टू अनदर टर्न, टिपिकली ये वैरी हो जाता है फ्रॉम 0.1 टू से 1 ओम, इतना वेरिएशन है। यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना, वो खुद बेचारी 1 ओम है, बिकॉज रिमेंबर वी आर मेजरिंग स्मॉल रेजिस्टेंसेस। तो ये जो अगर आप मेथड वहां यूज करोगे, यू विल गेट अ वेरी, यू विल नॉट गेट अ इनकरेक्ट रिजल्ट, आई विल नॉट से इनकरेक्ट, बट इट विल बी अ वेरी रफ रिजल्ट। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रिफाइंड मेजरमेंट आपको करनी होती है व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद स्मॉल रेजिस्टेंसेस। तो जो ये केल्विन था, ये वही केल्विन है वो जिसने वो आपको सरदर्द वो बनाया था, डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हो, ये वही केल्विन बेचारा है, उसने ये मेथड निकाला। ये नहीं है मेथड, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका थोड़ा मॉडिफाइड मेथड है, वर्जन है। लेट अस सी। ठीक है, सो मैं डायग्राम बना लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो ये रहा। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। उप्स। um, ओके, सो ये बीच में हमारे पास एक क्या कहते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस है, एक स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। और बाकियों के नाम तो आप मैंने इंट्रोड्यूस कराए थे। दिस इज कैपिटल Q, दिस इज स्मॉल q, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m। ठीक है, ये है अपना नोन रेजिस्टेंस, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस X, और ये आपका है नोन रेजिस्टेंस S। फिर बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ बैटरी है, रियोस्टेट है जो होता है।
ठीक है, दिस इज रियोस्टेट। आई एम सो सॉरी, नहीं क्यों मुझे खाएं 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 हो रहा है। ठीक है, ओके सो इसमें थोड़ी हम मॉडिफिकेशन करते हैं। हमारे पास एक पेयर है इसमें वेरिएबल, या तो आप कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू वेरिएबल बनाओगे या कैपिटल एम या स्मॉल एम, मतलब एक पेयर की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। विल सी व्हाई दैट इज रिक्वायर्ड। सो आई विल जस्ट टेक दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज आल्सो वेरिएबल। ठीक है, नाउ थोड़ा थोड़ा ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। लेट अस गो बैक टू द व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें भी हमारे पास रेजिस्टेंसेस थी और उनके बीच में गैलोमीटर हमने लगाया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4 ही रेजिस्टेंस थे, यहाँ पर 7 रेजिस्टेंसेस हैं। इफ यू कैन सी कैपिटल क्यू स्मॉल कैपिटल एम क्यू एंड एम 4 हो गए, एक्स एस एंड आर, यानी कि आपके ओवरऑल कितने हो गए रेजिस्टेंसेस, ये 7। सो कोई मुझे कह सकता है इसका अगर मुझे बैलेंस पॉइंट निकालना होगा, कैसे निकालूंगा? एनीवन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई कह सकता है इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? अगर आप इन 3 रेजिस्टेंसेस को देखोगे, स्मॉल क्यू, स्मॉल एम, स्मॉल आर, डेल्टा। इट इज डेल्टा, है ना? डेल्टा को हम वाई में कर सकते हैं कन्वर्ट। यस सर। देखते हैं अगर इसको मैंने डेल्टा को वाई में कन्वर्ट किया, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। मे बी आई विल ड्रॉ इट ऑन दिस पेज। सो हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसी है, ठीक है, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है एक्स, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है एम, फिर हमारी रेजिस्टेंस है क्या नाम है इसका, एस। ठीक है, दिस इज क्यू, दिस इज एम, दिस इज एक्स, दिस इज एस। वही है, हाँ। इसको अगर मैं डेल्टा में करूंगा, रिमेंबर डेल्टा कैसा होता है? डेल्टा नहीं, ब्लू मैं यूज नहीं कर सकता, लेट मी यूज दिस। डेल्टा क्या करेगा, वो एक मिड पॉइंट आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। सॉरी, वाई क्या करेगा, मिड पॉइंट एक क्रिएट करता है, कॉमन पॉइंट। तो यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक या एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो लेट अस सी, हमारे पास एक कॉमन पॉइंट यहां क्रिएट हो गया। सो देयर विल बी अ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, there will be a resistance from this point to this point, and there will be a resistance from this point to this point. And remember, ये वाला point कौन सा है? ये वाला point, this is in series with galvanometer. Look at this point, यहाँ galvanometer है, फिर ये कैपिटल Q and कैपिटल M का मिड पॉइंट है। so ये है अपना, let me go back to black or something, this is galvanometer। ठीक है, so let us name them, this is say A, this is say C, and this is B। अब कुछ जाना पहचाना लग रहा है? यहां से सप्लाई आ रही है, यहां से जा रही है, थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, हाँ? कंपेयर दिस विद गैलो, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ गया, कहाँ गया वो? ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज में अपर आर्म आपके पास थी क्यू एंड एम। यहां पर भी अगर आप देखोगे क्यू एंड एम, उसके बाद आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था कनेक्टेड टू अ लोअर आर्म। लोअर आर्म की रेजिस्टेंस क्या थी? लोअर आर्म की रेजिस्टेंस थी ओके, कहाँ गया? एक रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, और बीच में आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहां पर भी अगर आप देखोगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? एनीवन? यहां से यहां तक कितनी रेजिस्टेंस है? अरे इजी है यार। व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन, से लेट मी कॉल दिस वट एवर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। खाली अगर आप ये पाथ देखोगे, ये ब्रांच देखोगे, ये कितनी रेजिस्टेंस है? जल्दी बोलो ना, इसमें क्या शर्माना है? ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स, ऑब्वियसली। तो किसका वेट कर रही थी? पहले बोला था ना। इन द सेम वे यहां से यहां तक कितनी रेजिस्टेंस है? एस प्लस सी। तो बैलेंस पॉइंट पे व्हेन गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगी, सो आई विल राइट एट बैलेंस पॉइंट दिस करंट इज 0। यहां क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं?
ये बन गया ना इफेक्टिवली इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन मुझे कोई इक्वेशन लिख के दे जल्दी। x plus a by c plus s x प्लस a divided by c plus डिवाइडेड s. बाय c प्लस a, कहाँ c प्लस s होगा? अरे s ही बोला। ओके ओके, s प्लस c इज इक्वल टू q by m. q बाय m। शाबाश, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो लेट अस सी। अब थोड़ा इसमें मैं एट द मोमेंट आई डोंट नो, आई कैन इन्फर द वैल्यू। अगर आपको डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन याद है, अगर नहीं है तो मैं रिवाइज कराऊंगा। आप स्मॉल क्यू स्मॉल एम और स्मॉल आर से इन्फर कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो बी तो नहीं चाहिए, ए एंड सी का वैल्यू आप इन्फर कर सकते हो। लेकिन लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट in this equation in a simplified form. Remember, x is unknown, s is also known. So मैं x को लिखना चाहता हूँ ऑन द LHS और बाकी सब रखना चाहता हूँ ऑन द RHS। तो ये बनेगा x प्लस a इज इक्वल टू q बाय m इंटू s प्लस c। ये ठीक है। और x इज इक्वल टू, यही मैं लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है। So if I know the value of q, I know the value of m, I know the value of s, know the value of c, know the value of a, I can infer the value of x. अब रहा सवाल a और वगैरह वगैरह का क्या वैल्यू है। लेट अस सी। ओके, सो हमारे पास जो ओरिजिनल डेल्टा था उसमें हमारे पास था स्मॉल q स्मॉल m स्मॉल r। ओके, मैं यहाँ डेल्टा दिखाता हूँ आपको। दिस वाज स्मॉल, प्लीज हेल्प मी, यही होगा कि कोई और होगा? ठीक है, ये r था, ये स्मॉल q था और ये मेरा m था। ठीक है। उसके बदले मैंने क्या बनाया? उसके बदले मैंने बनाया आपका y ऐसा था। ठीक है, ये था a, ये था c, ये था b। अब b तो मुझे चाहिए नहीं, मेरे को a एंड c चाहिए। कोई मुझे कह सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ q m एंड r? एनीवन? डेल्टा Q टू y into R ट्रांसफॉर्मेशन। divided by So Q plus M plus R. न्यूमरेटर क्या है? Sum of three resistance. न्यूमरेटर नॉट Product डिनोमिनेटर। of two adjacent branches आएगा। हाँ, Q into R. शाबाश शाबाश। q into r divided by sum of resistances q plus m plus r. What about c? इसका adjacent कौन है? m और r M है ना? into R. डिनोमिनेटर वही है, q प्लस m प्लस r। ए तो मेरे को सॉरी बी तो मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में है, तो स्टेडी स्टेट में उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। इट इज इफेक्टिवली अ पार्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट दीज टू इक्वेशंस इन दिस इक्वेशन। कहाँ गया ये है अपना इक्वेशन। अब ये थोड़ी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन नहीं है, थोड़ा सरदर्द वाला इक्वेशन है। लेट अस सी, x इज इक्वल टू q बाय m। ठीक है। सो s प्लस c किसके बराबर था? एम आर बाय क्यू प्लस एम प्लस आर। एम आर डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू स्मॉल एम स्मॉल आर माइनस ए शायद, हाँ, क्यू आर बाय क्यू प्लस एम प्लस आर। नाउ I will leave you to मतलब try to simplify this expression. I will simply write the final expression। जब आप इसको simplify वगैरह करते हो वो इसके बराबर बनता है। It is equal to q by, in fact it's इतना मुश्किल नहीं है वो जानना, आप ये simply यहाँ लिखो, it will be q s by m। अगर मैं इसको multiply करूंगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास है प्लस q, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, q बाय m प्लस r बाहर निकलेगा, दैट इज कॉमन, q प्लस m प्लस r। ठीक है,
न्यूमरेटर में अगर मैंने एम आर रख लिया तो क्यू बाय एम आएगा। हाँ हाँ हाँ, अगर मैंने न्यूमरेटर में ये सॉरी ये है स्मॉल एम आर, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू बाय एम, तो मैं क्यू बाय एम रखता हूँ। ये है आपके पास क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ ना, न्यूमरेटर को भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एम आर यहाँ भी कॉमन रहेगा, ये बनेगा माइनस क्यू बाय एम। ठीक है, सो एज यू कैन सी लुक एट दिस टर्म, पहला टर्म हमारे पास है क्यू एस बाय एम, और जो दूसरा टर्म है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज सम टर्म एम आर डिवाइडेड बाय क्यू प्लस एम प्लस आर इंटू ब्रैकेट में हमारे पास है क्यू बाय एम माइनस स्मॉल क्यू बाय स्मॉल एम। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, जब आपको ट्यून करना होता है आपका केल्विन डबल ब्रिज, हम पहले ट्राई करते हैं कि ये जो है ना क्यू बाय एम और स्मॉल क्यू बाय स्मॉल एम, रिमेंबर ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर नोन टू अस, क्यू एंड स्मॉल क्यू और वेरिएबल रेजिस्टेंसेस, हमको पता है क्या उसका वैल्यू है, और कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल एम भी नोन हमारे रेजिस्टेंसेस हैं। हम इनको वेरी ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, अगर वैसा हम करेंगे सो दिस इज बैलेंस्ड, so this term is approximately equal to zero. Zero को आप multiply करोगे with anything, you will still get approximately equal to zero. So finally we can write our expression is x is equal to जो पहला term है qs by m। ठीक है, कहाँ गया ये? सो ये है मेरा डबल ब्रिज। ठीक है, तो इट इज क्यू एस बाय एम। ठीक है, इफेक्टिवली ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कि ये जो बीच का है ना, ये हिस्सा जैसे मौजूद ही नहीं है वहां पर, खाली वहां गैल्वेनोमीटर है। तभी इक्वेशन बनेगी ना Q इज इक्वल टू क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू एम बाय या एक्स बाय क्यू, जो भी आप कहना चाहते हो, एक्स बाय क्यू, अगर वैसा होता एक्स बाय क्यू इज इक्वल टू एस बाय एम, और वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एम इंटू एस। इफेक्टिवली ऐसे बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है कि बीच के रेजिस्टेंस वहां नहीं। अब इसका हासिल क्या हुआ, basically by using these small resistances we have been able to get a more accurate reading। अगर आप यहाँ देखोगे ये जो ये रेजिस्टेंसेस है x, दिस इज स्मॉल, ये जो s है दिस इज टिपिकली आल्सो स्मॉल, लेकिन इसमें हम किसी को वैरी नहीं कर रहे हैं, हम वैरी कर रहे हैं बाकी रेजिस्टेंसेस, ये स्मॉल q स्मॉल m जो भी है, दीज रेजिस्टेंसेस कैन बी क्वाइट लार्ज। इज दैट क्लियर? तो वो प्रॉब्लम हमारे पास अराइज नहीं होती, जो मैंने आपको बोला था कि अगर आप बड़ा रियोस्टैट लोगे उसको वेरी करोगे तो मतलब वेरिएशन ही आपकी बहुत लार्ज होती है। इसमें हम बड़ा रियोस्टैट यूज करते हैं, लेकिन हमने जो फांद यहाँ पर इस्तेमाल किया है इफेक्टिवली विदाउट परटर्बिंग दिस और परटर्बिंग दिस, हम परटर्ब कर रहे हैं आजू बाजू के रेजिस्टेंसेस, तो हमको तो भी एक्यूरेट रीडिंग मिल रही है। एनी क्वेश्चंस? अदरवाइज वी विल मूव ऑन। कोई सवाल? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब इसी का आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन ये जो डबल ब्रिज है उसी के तर्ज पर एक इसका प्रैक्टिकल एक फॉर्म है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल, थोड़ा उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल, हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग मीटर होता है, वो उसको हम कहते हैं केल्विन ब्रिज ओम मीटर। वो बहुत कॉमनली यूज होता है इन लेबोरेटरीज, इन इंडस्ट्रीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब है जो वाइंडिंग वगैरह आपकी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, लार्ज मशीन्स की। इट इज बेसिकली वेरिएशन ऑफ दिस। उसमें खाली फर्क क्या होता है कि आपको डायरेक्ट रीडिंग मिलेगी, इन द सेंस यहाँ पर जैसे आप देखोगे आपको ये मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, उसमें इंटरनली हमने उसको ऐसे डिजाइन किया होता है कि डायरेक्टली वंस यू बैलेंस आउट द सिस्टम यू विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन। ओके, you cannot create any more frames। क्या है मैं क्या करूँ? अच्छा, I have reached the limit। So any questions? कोई सवाल? अरे कोई सवाल तो पूछो भाई। Any questions? No questions? So let's look at measurement of medium resistance।
इसमें we have a couple of methods. Actually, we have many methods, but let me first of all look at the first method is वही ammeter voltmeter घिसा पीटा method. ये हमेशा आपको, अगर आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड कहीं लेना होता है, हर जगह हम एमीटर वोल्टमीटर यूज करते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ हाई, क्योंकि वहां एमीटर रीडिंग बहुत स्मॉल होती है. ठीक है. देन वी हैव व्हाट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. And then we have third is Wheatstone bridge method and its variations. Wheatstone तो आपको पता ही है. ठीक है. So first of all look at substitution method. ammeter voltmeter तो हमने देखा जब हमने देखा था measurement of flow resistance. It is again क्या नाम है, एक जुगाड़ method इसको कह सकते हैं. It also gives very rough approximate values of resistances. ये आपका method है. सर हाँ. सर नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई. अरे ठहरो ना, ये कंप्लीट करने दो मुझे, फिर जाओ. नेक्स्ट क्लास कौन सी बात है? सिग्नल. कोई बात नहीं, सिग्नल सिस्टम सुसाल है. ठीक है. ये है आपका क्या नाम है इसका, एमीटर. ये आपका है रियोस्टेट. देखो फांद क्या हम करते हैं, ये हमारे पास है नोन रेजिस्टेंस आर एंड ये हमारे पास है अननोन रेजिस्टेंस एस. यहाँ पर हम स्विच यूज करते हैं. लेट्स कॉल दिस स्विच. पहले हम क्या करते हैं, हम सॉरी दिस इज एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था स्विच. ओरिजिनल पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. हम क्या करते हैं, पहले इस पोजीशन में क्या नाम है इसका, करंट का मेजर करते हैं वैल्यू. ये है करंट का वैल्यू आई. ठीक है. ये मेरे पास एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है. इट इज ऑल्सो अ रियोस्टेट. उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विच का पोजीशन करते हैं चेंज, यहाँ लेते हैं. इनिशियली अगर आप देखोगे करंट फ्लो हो रही थी, स्विच में जा रही थी, एक्स में फ्लो होकर वापस जा रही थी बैटरी में. उसके बाद अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज कर दी ना, आप यहाँ से यहाँ चले गए. ठीक है. अब करंट यहाँ से आ रही है, इट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकंड रियोस्टेट दैट यू आर यूजिंग. रियोस्टेट की मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू तब तक चेंज करता हूँ जब तक मेरे को सेम करंट की रीडिंग नहीं मिलेगी. जब मुझे सेम करंट की रीडिंग मिलेगी, दैट मींस रियोस्टेट का जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज द सेम एज द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. पहले मैं ओरिजिनल करंट निकालता हूँ फ्लोइंग इन द सर्किट बिकॉज ऑफ एक्स. फिर मैं सर्किट में से एक्स को निकाल के एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, दैट इज बिफोर बॉन कर रहा है, तो ताने सेम करंट बाइने. जब सेम करंट मिलती है, मैं बोलता हूँ आहा आई हैव सक्सीडेड यूरेका, तो उससे मुझे रीडिंग मिलती है. अब आपके पास है व्हीटस्टोन ब्रिज. इसमें एक्चुअली एक व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपको पता ही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक क्लास 11th या 12th या जब से आपने आंखें खुलाई हैं. उसका थोड़ा एक मतलब क्या कहते हैं उसको, वेरिएशन है जो हमको थोड़ा बहुत पढ़ना है. उसको हम कहते हैं ये क्या कहते हैं, कैरी फॉस्टर स्लाइड वायर ब्रिज. तो वी विल मे बी टेक दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास. उसी में हम आगे भी देखेंगे वो जो कब होगी अब नेक्स्ट क्लास ये तंजीम, टुमारो. जब आप बोले. ठीक है, कल मैं ले लेता हूँ क्योंकि अब शब कदर है फिर तो कल. लेकिन आप मुझे रिमाइंडर दे देना. ठीक है. इनमें मुर्शिद कैसे कितने बजे आपके लिए कन्वीनियंट होगा? सर बाकी स्टूडेंट्स भी फिर बोलेंगे खुद डिसाइड किया. नहीं, अब कहीं मुझे कहीं जाना पड़े तो वही मैं कह रहा हूँ ना. अब एक काम मैं कर लेता हूँ, 2 बजे रखते हैं. ठीक है, जो हमारी नॉर्मल टाइमिंग है. ठीक है सर. आज का ठीक लेक्चर है. आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे. मैं तंजीब को लिंक अभी दे दूंगा. तो ठीक है. ठीक है. तो कल भी आपकी क्लास होगी 2 o'clock, क्योंकि शब कदर फिर वरना या तो शब कदर के दिन छुट्टी है या तो आपको फिर क्या नाम है इसका, ईद से एक दिन पहले आना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूँ आप करो ऐश. कल मैं ये खत्म कर लूंगा एंड थोड़ा बहुत एसी ब्रिजेस है वहां बच गया, मेजरमेंट ऑफ फेज वगैरह वो मैं आपको असाइनमेंट रख लूंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ. यू कैन ऑल एग्जिट, यू कैन लीव. जो